welcome, my dear friends, on this channel. So today we are going to discuss one very important topic is basic structure of the industries. So what is the main motto of this session is? So let me clear you that. In last couple of days, most or many of my colleague or more or many of students were insisting me to discuss on this topic. The what is the nature of this industry, how the industry work, and where how do we get the knowledge of this industry, or how can we apply to the job and all everything, right? Then yes, of course, I wanted to connect with you, earlier, but I could not just because I hadn't much time. I was stuck somewhere, so just because of that, I could not connect you early. But nevertheless, now I'm here to connect with you guys through this, the platform. And the important, the the motto of this discussion is I have prepared 2 to 3 slides, so we'll go through each of slide and we'll discuss in details. So how is the industry, how it works, right? So there are many, the new concept would be there, so like BPO, KPO, and all. So we'll discuss those as well. And so up to the end of this, the session, so I'll ask few questions to you, or even I'll answer it to those questions as well, so that will help you a lot to grab the knowledge from this industry. And maybe you may have question in your mind, so why this knowledge is essential. Of course, you may have this question in your mind. I had this question in mind, and at the beginning of my journey with the corporate. So of course I would expect you may have also the same question. But the point is, if you don't know much about industry, then how can you get place in it? So that is the very win-win situation. If you are aware about it, if you known about it, definitely it will be the place or accommodate in this industry easily, as simple as that, right? So uh, I'll try to the make narrow this session, but trust me, guys. If you want to acquire knowledge, if you want to grab the knowledge, then you will have to spend much time on it. And I know थोड़े से video lengthy हो रहे, but I don't have any control on longevity or prolong of this session, just because always I try to cover much important aspect of this, the discussion. Otherwise, if I'm not covering important aspect, then that doesn't make sense to make video on this, right? So without taking much time, we'll start directly to the discussion, right? So the main subject of this discussion is basic structure of the industries. So how is the structure of this industries? Can you imagine, right? No. Okay. Let me tell you something. So we'll first of all we'll see this slide. I have made this slide, right? I haven't written much, but I just picked a few bullet points and I'll show you that the types of businesses, or I would say types of companies, you can say, right? So what are the types of businesses are there, or what are the types of companies are there, right? So we can think from a sector wise as well as the company name wise, right? Sector wise, right? Or business scale wise. We have a banking, we have a insurance, mortgage, ITES, information technology, I would say, manufacturing, automobile, right? Communication, then chemical, of course, right? Pharmaceutical, sport, games, agriculture, right? Defense, aeronautics, pharma, biochemical, right? Then infrastructure, government, state government, and central government, or federal government, right? They have also their own bodies or companies, I would say, right? Then retail, FMCGs. So those are the the name of industries, right? And why we are discussing those types of the businesses or types of the companies, right? Why we gonna be discuss?
You may have this question in your mind, right? If not, I'll give it answer to you and you will get the clarity. If you are thinking to to get place in MNCs like TCS, Infosys, Bank of America, JP Morgan, then the even from a manufacturing side like Tata Motors, Tech Mahindra, right? Mahindra CE, the Honda, Hyundai, right? Even Volkswagen, even from the telecommunication part, Airtel, Geo, then I would say what else, Vodafone, Idea, right? And if we're talking about the retail or FMCG part, we have a Future Group, then Avenue Mart, then we have Walmart, right? We have Central Mall and many more companies are there. Tata Group is also in FMCG, right? Even those Nestle, even those HUL, Hindustan Unilever Corporation, right? We have many more. Even though when we talk about infrastructure, we have L&T, Larsen and Toubro, right? So we have those companies as well from infrastructure side. When you talk about pharma, we have many more companies in pharma or biochemical as well. Timcon, even those Gam Foodlu. Then we have Sun Pharma, right? And many more, right? I'm not able to recall much names at the point, but still you can understand my the point what I'm going to put here, right? Even we have much companies in agriculture sector as well, even sport like Adidas, even many more their companies are there, right? Even I forgot to mention one name, which is Fiber, or I would say yes, Fiber, or the tire, like we have a CET Tire, TVS, then we have MRF, right? So those are companies. So those are very big companies, and then those comes under mid or small cap, or I would say large cap, right? So I'm not gonna be discuss those part, but so once I'll discuss those, then I'll jump on very important aspects so that will help you to understand the nature of the business, as well as that will help you to crack the interview as well. So that is what very important from the interview perspective. So that you will get so up to this. And when we talk about ITES means Information Technology Services, right? We have a TCS, right? One of the largest MNC in the world, or even Asia or India as well. We have Infosys, take Mahindra, then Wipro, of course, right? And many more, eClerx and all, right? And when you talk about banking and insurance, we have many players. When you talk about domestic market as well as international, Citibank, Bank of America, JP Morgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley, right? Then I would say UBS, right? Then RBS, Royal Bank of Scotland, right? We have that DB Bank. We have Bank Development Bank of Singapore is there, right? Even those including IMF, World Bank, right? And those banks will be in insurance as well as mortgages as well, right? So that is the general information I have given to you and mentioned company's name as well, according to the or as per the sector wise, right? So now you may have idea, so which are the companies, right? And well, so and where they are, right? Or in which sector they are, right? So important is, so how they gonna be manage their operations, right? How they gonna be manage their operations? So that is the very important aspect for us, right? So when we talk about banking services, or insurance or mortgage, right? Of course, so it is a core activity of finance to provide finance or to accept the deposit, to provide the loans, to provide the insurance policies to the customer, right? And to provide home loans, personal loans, right? So that is basically banks are doing. And when you talk about ITES, so maybe they can develop the applications as per the requirement of client, or either they can invent something new and selling it out in the market as well.
So apart from that, they can provide support services as well to the respective clients or agreed parties, or who have made the agreement with them. They can provide services to their client, support services and all. That comes under ITS. Manufacturing means, of course, to produce something, to build something, right? Honda, your Maruti and Tata, they always produce something unique, the four-wheelers, vehicles, right? So that is what. Communication means, of course, we can take example of Jio, newly launched. I think in 2017 or 2018, they have launched it. So those are the businesses. And in this session, so I'll be discussing on few parts, few sectors, right? We'll discuss the business model of IT and financial businesses. Why I'm going to discuss those only? Just because uh, so after this or in this session, we'll be discussing on the recruitment part as well. How you gonna be recruited to get place in such companies, right? Most of the people that doesn't know how to get place in MNCs. But I'll help you to get place in industry. And just because of that, you should know your roles and responsibilities, and then you will be able to understand the core activities of their businesses, and accordingly you can prepare for interview, राइट। तो ये हुआ। अभी बैंकिंग की बात हम यहीं पे करेंगे, आईटीएस है। और मैन्युफैक्चरिंग का तो मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा इस पे, मैन्युफैक्चरिंग और बाकी सब इस पे अगर रिक्वायरमेंट रही देन आई विल मेक अनदर वीडियो ऑन इट, राइट। तो हम इसमें देखेंगे। चलो ठीक है। जो बैंकिंग बिजनेसेस है, बैंकिंग बिजनेसेस में ये जो एक्टिविटीज आउटसोर्सिंग का जो मॉडल है विच इज वेरी यूनिक। यानी कि अगर मैं बात करूं we'll talk about HDFC, right? राइट। ये मैं बात कर रहा हूं अभी HDFC के एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिया। इट इज अ बैंक, राइट। बट when you talk about HDFC Bank, so what is their core activity? So what is their core activity? Their core activity is to sell the banking products to their customer or to the general public. ये सेलिंग ही करेगा। जब सेल करेगा, मानो कि कोई पॉलिसी सेल की है मार्केट में, जब पॉलिसी सेल हो जाती है तो पॉलिसी को मेंटेन करने के लिए या फिर उसका डेटा मेंटेन करने के लिए उसका प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, देन बाकी मोरेटोरियम, देयर अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल, एवरीथिंग दे शुड हैव टू मेंटेन इन देयर सिस्टम। ये काम कौन करेगा? बिकॉज दे कैन नॉट डू ऑल द एक्टिविटीज। it is bit difficult to maintain everything under one umbrella. Just because of that, they want to diverse their business, or they want to uh, outsource their activity to someone else who can complete it, who can maintain it, who can report it, right? And just because of that, they can do outsource their activity to someone else. Someone else means whom? Let's take example. Agar when we talk about HDFC, they have given their operations to the TCS. TCS can manage their account activity, account open to account deactivation, I would say, or credit card payment activity, even those debit card activation, deactivation activity, even those credit card payment part is that definitely if you have opted out credit cards of HDFC Bank, they're gonna be call you, right? Like, sir, we are calling on behalf. On what is the meaning of on behalf? तो यानी कि जब हम आउटसोर्स करते हैं तो ये टीसीएस उनका बिजनेस संभाल के देगा। जो भी बैकएंड के ऑपरेशंस रहेंगे वो पूरे के पूरे टीसीएस संभाल के देगा, राइट। तो आपका क्वेश्चन होगा कि अगर मुझे जॉब करना होगा तो मुझे इसमें रोल क्या मिलेगा, राइट।
देखो, रोल कोई ऐसे स्पेसिफिक रोल नहीं होता है जहां पर, क्योंकि हम वहां पर काम करने के लिए जा रहे हैं। काम कौन सा हो सकता है कि कॉल उठाने का हो, राइट, या फिर कॉल रिसीव करके इंफॉर्मेशन देने का हो, या फिर कॉल करके बेचने का हो। इट कुड बी एनीथिंग। आइदर जो डेटा अकाउंट एक्टिवेशन का है उसका रिकंसिलेशन, बैलेंस आया गया, बैलेंस कितना आया, कितना था, कितना नहीं था, वो भी डेटा यू कैन मैनेज एट बैक एंड, राइट। तो वो भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो भी एक आपको आ सकती है। तो उसको हम प्रोसेसिंग बोलते हैं, राइट। तो बिजनेस की, हर एक बिजनेस के जो पार्ट होते, 3 पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको हम बोलते हैं फ्रंट, फ्रंट ऑफिस, मिड ऑफिस एंड बैक ऑफिस। अब ये बैक ऑफिस है क्या? बैक ऑफिस में प्रोसेसिंग होती है, ये सपोर्ट इनबाउंड इनबाउंड और आउटबाउंड कॉल सेंटर से वो भी होता है। इवन दो आईटीईएस जो है वो भी होता है। इसका मतलब क्या है? अगर कोई एक्टिविटी वी हैव आउटसोर्स्ड फ्रॉम our client, then we are entitled to provide outsource or committed services to our client or to the different stakeholders within a deadline, राइट। सो एक एसएलए, सर्विस लेवल अग्रीमेंट, साइन होता है एचडीएफसी और टीसीएस के बीच। देन टीसीएस को बैक ऑफिस और सपोर्टिंग और आईटीएस के सर्विसेज देने पड़ते हैं, राइट। तो ये एक मॉडल होता है, उस मॉडल को आउटसोर्स बोलते हैं। और ये मॉडल हमें जानना क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर इफ यू आर लुकिंग फॉर टू गेट प्लेस इन टीसीएस, तो टीसीएस क्या करती है? इफ अगर आप आईटी के बैकग्राउंड से हो, आप आईटी की इंजीनियरिंग किए, या फिर आईटी के यानी कि आपके पास लैंग्वेज का नॉलेज है, सीसी सॉरी पाइथन है, एचटीएमएल है, या फिर और कुछ, या फिर आप डेवलपर हो, फुल स्टैक डेवलपर हो, या फिर आपने आगे कुछ इंजीनियरिंग में किया, तो डेफिनेटली यू कैन प्लेस हियर, राइट। ये फील्ड आपके लिए है आईटीईएस। बट इफ यू आर फ्रॉम नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड, मानो कि आपने बीएससी की है, बीकॉम किया है, बीए किया है, राइट, तो आप कहाँ जॉब करोगे? टीसीएस में। क्योंकि हम जब मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं मुझे बोलते हैं कि यार मुझे आईटी कंपनी में जॉब करना है, एंड वो बीए किया है उसने, या फिर किसी ने बीकॉम किया। मैं बोलता हूँ कि आपको ऐसे लगता है, वी आर नॉट द पार्ट ऑफ आईटी, वी आर पार्ट ऑफ बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्स मॉडल। माना कि नेम सेम हो या फिर सेम बिल्डिंग में काम करे कोई, बट आईटी है नहीं है, राइट। वी हैव आउटसोर्स्ड, हम आउटसोर्स हो गए हैं। आपको फ्रीलांसिंग कॉन्सेप्ट पता होगा कि इतने पैसे में इतना बिजनेस करके दो, या फिर इतने दिन इतना प्रोसेसिंग करके दो। द सेम वे वी आर डूइंग हियर। बट ये सबको उसकी जो गारंटी या फिर जॉब सेफ्टी सिक्योरिटी रहेगा, जो भी एम्प्लॉयर हायर करते हैं उनकी ही रहेगी। बट एक मॉडल जो है, मैं उस मॉडल की बात कर रहा हूं, राइट। तो हम आईटी में नहीं होंगे पार्ट, बट उनका नाम वगैरह सेम रहेगा। वो जैसे कि इन्फोसिस की हम बात करते तो इन्फोसिस बीपीओ प्राइवेट लिमिटेड उन्होंने लॉन्च किया, मतलब आईटी का सेगमेंट अलग है, बीपीओ का अलग है, राइट। उनके बीपीओ में ऑफकोर्स प्रॉफिट दिख रहा है, तो लोग अपना नए नए स्ट्रेटेजीज, दे आर यूटिलाइज, मतलब वो लोग अपना नए नए business strategies they are developing in the in place. Like the outsource is one of the most uh, I would say unique strategy they have launched, and वो एक्टिविटी ऐसी है कि उसी से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है उनको भी। और ये ठीक है, तो दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ आवर डिस्कशन, बट द पार्ट इज कि आप जॉब क्या करोगे वहां पे। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बैक ऑफिस का काम करेंगे, मिड ऑफिस का करेंगे, या फिर सपोर्ट कॉल सेंटर का करेंगे। एवरी फंक्शन इज इसेंशियल फॉर द बिजनेस, एवरी फंक्शन, राइट। आप कॉल सेंटर का पार्ट हो, उसको सपोर्टिंग बोलते, एक्चुअली बिजनेस सपोर्ट बोलते हैं उसको। जो कि आपने कोई कार्ड लिया, कार्ड का एक्टिवेशन कराना हो, डीएक्टिवेशन कराना हो, तो आप अगर किसी ऐसे कॉल सेंटर में काम करोगे तो वही काम करोगे। फोन का सिम से लेकर जो अभी एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड की हम बात करते हैं, या फिर क्रेडिट कार्ड की बात करते हैं, तो सेम, जब भी कस्टमर इन ट्रबल, दे विल गोना बी कॉल यू एंड यू विल बी एबल टू
provide solution to them, right? So that is how the call center deal with customers. सो ये वहां पे चलता है. बट अगर इसके अलावा अगर हम प्रोसेसिंग की भी बात करेंगे तो मैंने पहले ही बोला कि एग्जांपल में कि अगर इंश्योरेंस की पॉलिसीज है या फिर आपने होम लोन लिया है, जब सेल का एग्जीक्यूटिव का काम है फ्रंट ऑफिस में बैठ के ब्रांच में बैठ के बेच देने का, बेचने के बाद का जो अप्रूवल का प्रोसेस है, या फिर जब वो कस्टमर पेमेंट करता है तो उसके अकाउंट मेंटेनेंस का जो प्रोसेस है, या फिर पूरा लोन वगैरह पूरा पे होने के बाद जो अकाउंट क्लोजर का जो प्रोसेस है, या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम कुछ डॉक्यूमेंट मिसिंग्स है या फिर जो भी है, या फिर इंटरेस्ट रेट कितना देना है कितना नहीं देना है, अप्रूव करना है नहीं करना है, ये भी जो प्रोसेस है पूरे बैक ऑफिस में ही चलते हैं. उसको प्रोसेस को अलग अलग नाम से जाना जाता है, या फिर एक प्रोजेक्ट में एक इसको प्रोजेक्ट ऐसे बोलते हैं. अगर किसी एचडीएफसी ने मानो टीसीएस को दिया है तो प्रोजेक्ट बोलेगा, बट उस प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारे हॉरिजन हो सकते हैं. हॉरिजन क्या क्या होंगे? एक प्रोसेसिंग का होगा, सपोर्टिंग का होगा, आईटीएस का होगा. जैसे कि मानो एचडीएफसी कोई एप्लीकेशन यूज कर रहा है तो उसको जो भी मेंटेनेंस से लेकर एडवांसमेंट जितने भी डेवलपमेंट के फेजेस होंगे, और जो भी टाइम टू टाइम डेवलपमेंट या फिर सपोर्ट लगेगा, असिस्टेंस लगेगा, वो टीसीएस की ही टीम देगी, तो उसको आईटीएस बोलते हैं. या फिर अगर मैं प्रोसेसिंग की बात करूं तो प्रोसेसिंग में मिड ऑफिस और बैक ऑफिस का मैंने डिफरेंस बताया. मिड ऑफिस में कुछ नहीं कि जो ट्रेड वगैरह या फिर जो भी ट्रांजैक्शंस आते हैं उनको बैक ऑफिस में देना कंफर्म करके कि ये होने वाला है, उस चीज को मिड ऑफिस करते हैं. और बैक ऑफिस में पूरा मेंटेन किया जाता है, प्रोसेसिंग किया जाता है, पेमेंट डिसबर्स किया जाता है. ये सब चीजें बैक ऑफिस में होती है. या फिर अकाउंटिंग या फिर रिपोर्टिंग का जो भी पार्ट है बैक ऑफिस में आता है. या फिर डेटा एंट्री भी आप बोल सकते हैं, जो लेमन लैंग्वेज में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि डेटा एंट्री एंड ऑल. तो ये भी काम प्रोसेसिंग के ही अंडर आता है. तो ये सब भी काम आप कहीं ना कहीं करोगे. या फिर आपको लोन क्लोजर के लिए ले सकते हैं, इंश्योरेंस क्लोजर के लिए, इंश्योरेंस बहुत सारे ऐसे अलग अलग. मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, नाम बता रहा हूं मैं आपको, ताकि आपको इजी जाए कि समझने के लिए आप क्या करो. बहुत बार दिमाग में यही क्वेश्चन रहता है, व्हाट आई एम गोना बी डूइंग देयर, राइट? आप मैं क्या करूंगा वहां जाके? अब कुछ नहीं करोगे यार. आपको मे बी आपको 100 ऐसे लोन्स असाइन होंगे, आपको बोला रहेगा कि उसका इंटरेस्ट रेट चेक करो, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के साथ बराबर है या नहीं है, बोरोवर के नेम चेंज करो, प्रॉपर्टी का वैल्यू चेंज करो, चेक करो, सॉरी, राइट, रिकनसाइल करो, बराबर है तो रिपोर्ट करो, नहीं है तो कस्टमर को रीच आउट करो. यही काम होगा आपका. और ऐसे ही बहुत सारे है. जैसे मैंने बैंकिंग में बोला, कैपिटल मार्केट, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, डेरिवेटिव जो डोमेन भी है बहुत वास्ट है. आई एम नॉट गोइंग टू एंटर इन डेप्थ जस्ट बिकॉज हमें टाइम का भी ख्याल रखना है. बट मैं ये कवर करने की कोशिश कर रहा हूं कि ये बिजनेस मॉडल्स होते हैं, ऐसे ऐसे रन होते हैं, राइट? और ये एक्टिविटीज ऐसे एक बैंक दूसरे बैंक को देती है, सॉरी, एक बैंक दूसरे कंपनी को देती है और उसे करवा के लेती है, और उसी के लिए आपको हायर किया जाता है. तो आप जॉब कहां कहां पे कर सकते हो? कहीं पे भी कर सकते हो. आप एचडीएफसी में भी कर सकते हो, या फिर टीसीएस में भी कर सकते हो. ये आपके ऊपर है. और आपको प्रिपरेशन क्या करना पड़ेगा, जो मैंने बोला कि अभी बिजनेस प्रोसेस वो क्या करते हैं. तो इसके लिए आपको बेसिक नॉलेज, यू शुड नो द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द ऑल फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स. और जहां पर आप जा रहे हो उस बेसिक नॉलेज होना चाहिए, जैसे कि कैपिटल मार्केट के बारे में, मनी मार्केट के बारे में, या फिर इंश्योरेंस के बारे में, होम लोन्स के बारे में, लोन्स के बारे में, राइट, रीफाइनेंसिंग के बारे में. जो भी एक कॉन्सेप्ट है यू शुड नो अबाउट इट. then you can crack the interview and get placed in it, as simple as that. तो ये चीजें कब आपको पता होगी कि ये मॉडल कैसे रन होते हैं, क्या करते हैं, टीसीएस क्या करती है एग्जैक्टली, वो पता होगा तो ही. तो टीसीएस ये चीजें करती है, या फिर इन्फोसिस हो, जितनी भी कंपनीज की मैंने नाम लिया है. ये आप बोलोगे कि अभी मैन्युफैक्चरिंग की, चलो किसी भी कंपनी का एक नाम ले लो, बीएमडब्ल्यू का. मैं आप बीएमडब्ल्यू की अगर बात करें तो मैं उसकी बात करूंगा. बीएमडब्ल्यू के अकाउंट की जो एक्टिविटी है वो विप्रो संभालती है, या फिर और कोई कंपनी होगी, सो या फिर कॉग्निजेंट संभालती होगी, और उसकी मार्केटिंग की एक्टिविटी टीसीएस संभालती होगी, राइट? क्योंकि बीएमडब्ल्यू का जो मेन गोल है टू प्रोड्यूस व्हीकल्स, राइट, नॉट टू मेंटेन देयर अकाउंट्स एंड ऑल. क्योंकि उनको फिर अगर आपको ये भी सवाल आएगा कि भाई ये अपने एक्टिविटी दूसरों को क्यों दे रहे हैं. देखो, अगर मैं खुद की एक्टिविटी खुद के पास रख रहा हूं, हर चीज मैं खुद मेंटेन करने की कोशिश कर रहा हूं, तो मेंटेनेंस कॉस्ट से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के रिक्रूटमेंट तक पूरे के पूरे खर्चे आई हैव टू बेयर इट. जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आई डोंट वांट टू बेयर एक्सपेंसेस, बट
I want the counterparty like who can fulfill my requirement with minimum cost, because every organization want to reduce their cost. Nobody can bear extra cost, and just because of that we heard that this company have fired 2 lakh 1 lakh or 5,000 or 2,000 employees and all, right? ये हम बहुत बार सुनते हैं, just because they want to restructure their business and they want to reduce their cost, unwanted cost, and just because of that वो अपनी एक्टिविटीज आउटसोर्स करते हैं। तो मैंने इन शॉर्ट ये भी मीनिंग समझा दिया कि व्हाई दे वांट टू आउटसोर्स देयर एक्टिविटीज, राइट? तो ये इतना डिस्कशन काफी है इनके। स्टिल इफ यू वांट कि और मुझे क्लैरिफिकेशन चाहिए और डिटेल्स चाहिए, यू कैन कॉल मी। आई हैव मेंशन माय सेल नंबर on first page. You can dial that and you can connect with me and you can ask any question that you have in mind, right? We'll move on next slide. So the what departments or which departments can be outsourced, right? So this is very important. कौन से departments outsource हो सकते हैं? अब कुछ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी भी हो सकती है। नाउ रिसेंटली वी हैव अ न्यूज, टाटा ग्रुप कैन प्रोवाइड मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी टू द एप्पल। दे विल give their joint hand to the Apple, and they're gonna be make invest around 8,000 crore. Initially they will invest 5,000 crore, and again over the period of time they will increase their investment up to 8,000 crore, right? And they will build a production unit so which can deliver Apple phones across the globe, and they can deliver from there, right? So as simple as that, Apple is going to make an agreement with TCS। हुआ ना, जो मैन्युफैक्चरिंग का एक्टिविटी था आउटसोर्स, यही है। तो उसमें जो भी रिक्रूटमेंट लगेगा इंजीनियर से लेकर डिजाइनर तक टीसीएस हायर करेगा अपने पेरोल पे और काम पे रखेगा। बट आप टीसीएस कंपनी के सॉरी टाटा ग्रुप के अंडर काम करोगे, बट प्रोडक्ट क्या प्रोड्यूस करोगे? आईफोन का। तो उसी को आउटसोर्स बोलते हैं, बिकॉज आईफोन इज द ब्रांड। उनको उनकी एक्टिविटी कंप्लीट करके चाहिए, फिर मोबाइल प्रोड्यूस करके चाहिए। बाकी प्राइसिंग का स्ट्रेटेजी हो, बाकी के जितने भी नेम से लेकर ब्रांडिंग से लेकर वो अपनी आईफोन की टीम डिसाइड करेगी, सॉरी एप्पल की टीम डिसाइड करेगी, राइट? देन ये भी एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है, HR, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट आल्सो कैन बी आउटसोर्स्ड। नाउ वी हैव टैलेंट एक्विजिशन। अगर आप बहुत बार देखोगे तो टैलेंट एक्विजिशन ये टीम्स के नाम से है, तो ये आउटसोर्स टीम है। एक कंपनी है, पूरे कंपनियों को HR प्रोवाइड करती है, डिफरेंट कंपनीज को, ये भी होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर आल्सो कैन बी आउटसोर्स। बड़े बड़े कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि जो ऑफिसेज बिल्ड वगैरह है वो आउटसोर्स करती है, ले लेती है। इलेक्ट्रिसिटी से लेकर हर चीज वो ले लेती है, आउटसोर्स करती है, क्योंकि खुद का कुछ चाहिए होता नहीं है। तो हम उसको लीज भी बोल सकते हैं और रेंटेड भी बोल सकते हैं, राइट? ये भी होता है। आजकल बहुत सारे कंपनीज अपने ब्रांड नेम की ताकत से बहुत सारे बिजनेसेस सॉरी प्लेयर्स को काम पे लगाती है, काम देती है, काम करवाती है, पैसे जनरेट करती है, उनका स्ट्रेटेजी। इवन दो सिक्योरिटी भी जो एक है सर्विस, वो भी आउटसोर्स होती है। सिक्योरिटी गार्ड से लेकर बहुत सारी चीजें, इवन दो प्रोटेक्शन एंड ऑल, प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन एंड ऑल, वो भी चीजें कैन बी आउटसोर्स्ड। So very important, the point is I have circled to those which is finance, accounting and IT services। ये भी होती है जो विप्रो के जैसे कंपनीज है, या फिर सिटी बैंक है, FIS है, बैंक ऑफ अमेरिका, देन जेपी मॉर्गन, गोल्डमैन सैक, देन मेनी मोर, BNP and all। So those are international players, they can outsource their activities to the others, right? When you actually go and place in the the those
MNCs like TCS, Infosys and all, then you will know that कि यही उनके जो सीटी का प्रोजेक्ट दिखेगा। देन बहुत सारे आपको बैंक ऑफ अमेरिका के दिखेंगे, एलबीजी के दिखेंगे, सिंगापुर बैंक, जापान, बहुत सारे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट वो उनको प्रोजेक्ट आपको दिखेंगे, राइट। तो ये प्रोजेक्ट दिखेंगे, और जो मैंने ऑलरेडी इसी इसके पहले डिस्कस करते हुए बोला था कि आप प्रोसेस में क्या काम करोगे, तो वही काम करोगे जो नॉर्मल जो मैंने डिस्कस किया था। तो अंडर इस प्रोजेक्ट के अकाउंटिंग भी है, मैन्युफैक्चरिंग की भी, हर एक बिजनेस की अकाउंटिंग होती है, राइट। अगर कोई अपनी अकाउंटिंग एक्टिविटी आउटसोर्स कराना चाहता है तो वो भी करा सकता है। सपोर्ट सर्विसेज में कॉल सेंटर, और वही कॉल सेंटर ही है, या फिर ईमेल चैट प्रोसेस एंड ऑल वो भी है, तो वो भी करा सकते हैं। एंड मार्केटिंग भी एक है जो कैन बी आउटसोर्स, मतलब मेरे प्रोडक्ट की सिर्फ मार्केटिंग करके दो। अभी तो आप रियल एस्टेट में बहुत बार देखोगे कि या फिर इंश्योरेंस सेक्टर में पीओएसपी एक कॉन्सेप्ट आया है, राइट, पॉइंट ऑफ सेल्स पर्सन। आउटसोर्स के जैसा ही है, मैं कमीशन बेसिस पे इसको बोल रहा हूं कि सेल करके दो मुझे मेरे LIC या फिर इंश्योरेंस पॉलिसी सेल करके दो, और उसके बेसिस पे मैं कमीशन दूंगा अराउंड 40%। सो व्हाट इज दैट? तो ये आउटसोर्स के जैसा ही है। एक्चुअली इट इज नॉट द डेफिनेशन ऑफ आउटसोर्स, बट स्टिल यू कैन टेक इन दैट वे, राइट। तो ये सब एक्टिविटीज कैन बी आउटसोर्स। तो ये हुआ, देन विल मूव ऑन नेक्स्ट फाइल। ये है आपके काम की चीज। कंपनी, मैंने नेम्स मेंशन किए कुछ आपके रेफरेंस के लिए, आप कहां कहां पे जॉब कर सकते हो। अगर आप यू आर फ्रॉम अ टेक्निकल बैकग्राउंड, आइदर नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड, टेक्निकल का मतलब है कि इंजीनियरिंग, और नॉन टेक्निकल का मतलब है कि BA, BCom, BSc एंड ऑल, ये जो है नॉन टेक्निकल में आते हैं। तो यू कैन ऑल्सो लुक फॉर दीज कंपनीज, इन्फोसिस, TCS, HCL, इक्लेक्स, टेक महिंद्रा, एसेंशियल। सो अगर आप फ्रेशर हो तो आप दो तरह से आप इसको अप्लाई कर सकते हो जॉब के लिए। इवन दो BAC, BCom भी हुआ है, स्टिल यू कैन अप्लाई फॉर इट। नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू। आफ्टर ऑल आपको यू शुड हैव अ फ्लुएंट कम्युनिकेशन, ओरल एंड रिटन, सो दैट मैटर्स, एंड बेसिक नॉलेज ऑफ प्रोडक्ट्स। वो भी अगर नहीं है नॉलेज भी, यू कैन रीच आउट टू मी, आई विल हेल्प यू ऑन दिस, ओके। या फिर मैं वीडियो बना रहा हूं तो उसी के थ्रू आपको मिल जाएगा। तो ये जो कंपनीज है इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करोगे? द रीजन, सॉरी, द सोर्सेस आर, एक तो कंपनी के साइट पे जाके यू कैन अप्लाई टू इट। करियर साइट होती है एक, आप कंपनी के होम पेज पे जाओगे तो वहां पे करियर जो ऑप्शन होगा उसको सेलेक्ट करोगे। देन वो आपको पूछेगा कि आप नए हो तो नए हो बोलिए, और आप उसमें डेटा फीड करिए, आपका CV अपलोड कीजिए, एंड जस्ट वेट एंड वॉच। Company's recruitment department will connect with you shortly, and they will discuss further part, recruitment process part or screening process part, right. They will schedule your interview, and you will have to go through the interview process. Once you go through it, if you shortlisted, they will connect with you, and you can go and start to do your career. Even those you can opt for Citibank, BNY, JP Morgan, Bank of America, BNP Paribas, and FIS as well. There are many more players. I haven't mentioned here just because कि अगर आपको ज्यादा और लंबी लिस्ट चाहिए कितने कंपनीज है क्या है, यू कैन रीच आउट टू मी सेपरेटली, आई विल डिस्कस विथ यू ऑन इट, राइट। तो यहाँ पे कवर करना मुश्किल हो जाता है, तो मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर एक कंपनीज रखे। आप सेम इसमें भी एक तो कंपनी के साइट पे जाके यू कैन गो ऑन कंपनी साइट, चूज करियर टैब, एंड यू कैन फिल ऑल द डिटेल्स ओवर देयर, सो देयर रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट्स विल get you or contacted you shortly. Either you can download the Naukri.com app. You can upload or fill your details, update your profile, CV, your photo and all, or contact details. Then अगर बहुत सारे कंपनीज अगर उनकी यहाँ पे if they have a requirement, and if your profile is suitable for that, they will call you. Be prepared for that and accept the call,
एंड गिव द इंटरव्यू, दैट्स इट, एंड प्लेस हो जाओ। डिफिकल्ट तो कुछ है नहीं। इंटरव्यू का मतलब जो भी है बेसिक क्वेश्चन जो मैंने बोले हैं कि अगर आपको बिजनेस मॉडल अच्छे से समझा होगा तो बेसिक चीजें ही पूछेंगे। मैं क्या पूछते हैं कंपनीज में, तो ये भी मैं इसके ऊपर एक आई विल मेक वीडियो ऑन इट, तो वो नेक्स्ट सेशन में बनाऊंगा। बट जो बिगिनर्स है, जो इंडस्ट्री की तरफ आना चाहते हैं, जो इंडस्ट्री में जॉब करना चाहते हैं, उनके लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये मॉडल या फिर ये जो बिजनेस स्किल है शुड बी अंडरस्टैंड, राइट। अदरवाइज हमें पता ही नहीं होता कि क्या चल रहा है, मैं क्या काम करूंगा, क्यों जाऊंगा। अगर ये जजमेंट नहीं है सो यू विल नॉट बी प्लेस द क्यू, कि आप कहीं और ही भटकते रहोगे, आप इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को टच ही नहीं करोगे। क्या काम करना होता है, क्या नहीं करना होता है, मैं बीए किया है तो मैं जाऊंगा या नहीं, बीएससी वाला करेगा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर कोई क्वालिफिकेशन का यू कैन गेट जॉब हियर, राइट। और परमानेंट जॉब होती है, आपको छोड़ना है तो छोड़ सकते हैं, नहीं छोड़ना है तो कंटिन्यू कर सकते हैं। नोबडी इज गोइंग टू fire you unless and until if there is an any the emergency situation or the recession time is like that we have a pandemic now. Even in this pandemic also we haven't heard much, right. We have survived, we have sustained, and finally I think we have overcome on this pandemic as well. बट आई एम श्योर कि कोई ऐसे ज्यादा तौर से होता नहीं है, राइट। तो ये मैंने दोनों भी बताया। तो ये जो सिटी बैंक एंड ऑल, ये जो है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में भी ज्यादा लोग जो रुचि रखते हैं, दे कैन अप्लाई फॉर इट। एसेंचर एक बहुत बड़ी कंपनी है, टीसीएस एक बड़ी कंपनी है, एचसीएल भी है, ये भी है। इसमें पूरे में बैंकिंग के प्लस आपको आईटी की भी जॉब मिल सकते हैं। आप आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से यू कैन अप्लाई फॉर इट। सन फार्मा ये सेक्टर स्पेसिफिक कंपनी है, इसमें तुम यू कैन अप्लाई। इसमें मैंने बोला कि इसमें कोई भी कर सकता है, इसमें भी कोई भी कर सकता है, जैसे रिक्वायरमेंट होगी दे कैन गेट बैक टू यू। बट इसमें अगर इफ वी टॉक अबाउट सन फार्मा एंड ऑल, डिवीज लैब, मैनकाइंड, इसमें आपका फार्मास्यूटिकल जो सेक्टर है उसी के रिलेटेड डिग्री होना चाहिए, दैट इज बेटर। बट बाकी अगर वो छोड़ के बाकी भी चीजें बहुत सारी होती है, अकाउंटिंग है, मार्केटिंग है, फिनेंस है, तो उसे में आप इजीली प्लेस हो जाओगी अकॉर्डिंग टू आपका क्वालिफिकेशन क्या है, आपने किससे किया, मार्केटिंग से किया, फिनेंस से किया एंड ऑल, राइट। या फिर कोई टेक्निकल नॉन टेक्निकल का भी है उसमें। ये भी सेम है टाटा मोटर्स का, इंजीनियर एंड ऑल यू कैन प्लेस हियर। गूगल एंड ऑल या बी ट्विटर एंड ऑल, ये जो कंपनीज है आईटी कंपनीज है, उसके लिए इंजीनियरिंग चाहिए, कंप्यूटर का नॉलेज चाहिए, और कंप्यूटर लैंग्वेजेस भी आना बहुत जरूरी है। तभी ये लाखों करोड़ों का पैकेज देते और हायर करते हैं। गूगल कंपनी इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी इन द वर्ल्ड। They are very cornered in the field of information technology than the others. They have achieved biggest milestone in their life also, even those Facebook as well. We cannot imagine the Facebook on 35,000 or 40,000 crore in a quarter, not in a year. Okay, so they earn near about 1 lakh crore in a year. So you can think of it. So these are very big companies. If you are looking for getting place in those companies, then उसके लिए आपको उसी के हिसाब से प्रिपेयर करना पड़ेगा। अमेजोन, फ्लिपकार्ट है, लोमबॉर्ड या फिर मेशो एंड अलीबाबा एंड ऑल्सो दोज आर online selling companies. I would say they sell the products through online platform, right. Seller can also register there, and तो इस कंपनीज में इफ यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब, तो उसमें कॉल सेंटर से लेकर आप एक सपोर्ट और टेक्नीशियन एंड ऑल ये भी हो सकते हैं, ईमेल चैट प्रोसेस एंड ऑल ये भी हो सकते हैं, प्रोडक्ट सिलेक्शन से लेकर हर चीज, डिजाइनर वगैरह आप हो तो वो भी चलेगा इसमें, तो भी यू कैन अप्लाई हुई हियर। रिलायंस और ऑयल एंड ऑल या फिर बैंकिंग ये वो है, तो उसमें भी आप यू कैन अप्लाई फॉर इट आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से। मैंने जैसे ही बोला कि हर कंपनीज के लिए एक ही रूल लगता है, या फिर अगर आप फ्यूचर ग्रुप या फिर वॉलमार्ट, जियो भी है, तो ये तो इसमें कोई क्वालिफिकेशन पूछेगा नहीं। अगर ज्यादा 12वीं पास या फिर ग्रेजुएट है तो यू कैन गो देयर एंड अप्लाई फॉर इट। ये मॉल्स है, मॉल्स पे बस थोड़ी सी बोलने की कला चाहिए और खड़े रहने की कुवत चाहिए, डेफिनेटली विल बी प्लेस हियर। सैलरी 10-15 हजार से स्टार्ट होगा, जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस गेन करोगे वैसे वैसे स्विच करते रहो, पैसे कमाते रहो। तो यही फंडा हर जगह पर अप्लाई होता है, यू कैन डू इट हियर।
तो ये कंपनीज है, इसके अलावा और कंपनीज के कुछ नाम चाहिए तो यू कैन टेक्स्ट मी इन माय कमेंट सेक्शन, सो आई विल प्रोवाइड यू द लिस्ट ऑफ इट। ओके, बहुत बार यही होता है ना कि कंपनीज के नाम पता ना होने के कारण या फिर उनका नेचर ऑफ बिजनेस पता ना होने के कारण वी कैन नॉट अप्लाई टू इट, and that happened. I knew it. I have seen many real examples, and just because of that, I had decided I'll make video on this, and that is what I have made it. Okay, so last slide, we are left with last part of this discussion. ये है कि what will be your role in companies, जैसे कि मैंने पहले ही बोल दिया आपको, प्रोसेसर होगा, एनालिस्ट होगा, मैनेजर का होगा, टीम लीड का होगा, कॉल सेंटर के एग्जीक्यूटिव से लेकर ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग तक, डेटा फील करने तक या फिर डेटा वैलिडेशन तक, रिकंसिलेशन तक, कोई भी रोल आपको मिल सकता है। जैसे प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है उसी के हिसाब से दे गोना बी हायर यू। हाउ कैन यू अप्लाई फॉर जॉब्स, राइट? सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये मैंने बोला कि पहले naukri.com या फिर कंपनी के करियर साइट पे जाके, या फिर यू कैन रीच आउट टू द रिस्पेक्टिव कंसल्टेंसीज लाइक Randstad ऑल, Magna, Randstad and all. So those consultancies also will help you to get place in it, right? बट किसी को भी पैसे देके जॉब मत देखो, कोई पैसे लेकर जॉब नहीं देता है, फिर कोई लगे भी नहीं होते हैं। लेट मी क्लियर माई टाइटल हो हियर। सो कोई भी ऐसे पैसे देकर या फिर कोई पहचान वाला होकर, nobody is going to offer job in the organization, because every organization is very stick with the integrity part, and they don't want to make any the bias kind of nature in the recruitment process, just because they have their own code of conducts or ethics or integrity or like things like that things, and just because of that they cannot the offer such services to anybody. So don't the going like such the skeptic things, or don't come in such a trap. Just avoid it. But yes, those consultancies, they never charge anything, so they will, if they have any opening, and if the certain amount of the skills that you have, say skill set you have, then definitely अगर आप हो ही जाएगा आपका, ठीक है। बट naukri.com या फिर टाइम जॉब है तो वो बेस्ट है, यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम प्ले स्टोर, एंड आप आपकी डिटेल्स अपडेट करके यू कैन गो इट। अगर आपको वो भी पता नहीं है तो यू कैन रिच आउट टू मी, डेफिनेटली आई विल हेल्प यू। ओके, सो हाउ कैन यू प्रिपेयर फॉर द सेम, मतलब जॉब के लिए आप हाउ कैन यू प्रिपेयर फॉर इट? इंटरव्यू के लिए 40-50% तक इंग्लिश ठीक ठाक होना चाहिए, लिखने आना चाहिए, मेल्स एंड ऑल। वहां पे जब आप ऑफिस में जाओगे तो आपको मेल वगैरह लिखना होगा। आप काम करोगे यूके के लिए, यूनाइटेड स्टेट्स के लिए, या फिर जापान, फ्रांस, जर्मनी, चाइना, इन सब देशों के लिए आप काम करोगे, सिंगापुर, मलेशिया एंड ऑल, राइट? बिकॉज इंटरनेशनल बैंक उन्हीं की साइड से, राइट? तो जब उनके साथ काम करोगे तो लिखना और थोड़ा सा बोलना आना चाहिए, और समझना। अगर वो नहीं है तो उसके ऊपर काम करना चालू कीजिए। और बेसिक नॉलेज आना चाहिए, तो बेसिक नॉलेज के लिए आर्टिकल्स, न्यूज़पेपर या फिर कुछ भी, अगर कुछ भी नहीं है आपके पास, यू कैन रीच आउट टू मी, आई विल प्रोवाइड द मटेरियल टू यू, राइट? तो ये भी है। सो वेयर कैन यू अप्लाई टू द जॉब्स, तो वो तो मैंने ऑलरेडी पहले कवर कर दिया है, वेयर और हाउ कैन। सो दिस इज अ रिपीटेटिव क्वेश्चन, सॉरी फॉर दिस, right? And the last question is what you needs to cover to get place in MNC. Of course वही process knowledge, बेसिक इंडस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए, और कम्युनिकेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट? देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज इन communication in terms of written as well as oral, because they will be working with the international clients, right? And when you say I'm not able to speak in English in front of client, then they cannot speak in Marathi or Hindi, because they have only their only one dialect, which is English, and English is international language, right? Then you must aware about it. You should be able to speak in English, and that will help you to get to place or to achieve your personal objectives, whatever you have set for next couple of years, right? एंड दैट इज व्हाट इट हाउ इट्स वर्क। और ये इंडस्ट्री 24/7 में चलती है, तो आपको कौन सी भी शिप मिल सकती है। जैसे कि आप सिटी बैंक में भी हो तो आपको रात में भी लॉग इन करना पड़ सकता है, और डे में भी। सो इट बेस्ड ऑन, और इट इज फुल्ली डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस,
as simple as that. Nobody is going to hire you for the entertainment part. Everyone want to look their transaction. And the most important things I'll add here to end up this session, कि अगर कोई भी कंपनी या फिर अगर आप सोचो कि अगर आप कंपनी को चलाने के लिए आप एम्प्लॉय को ढूंढ रहे हो तो कैसे ढूंढोगे. ही शुड बी पंक्चुअल, he should be like obey the you know to his senior, right, or to his boss, right. He should be active, proactive, right, very smart, skilled, fluent in communication, right. Then he is very adaptive nature, right, adjustable nature, क्विक लर्नर एंड ऑल. तो यही चीजें कोई भी देखता है तो वो भी देखते हैं. वो लोग आपको 20, 25, 30 हजार दे रहे मतलब दे आर नॉट hiring you for entertainment part, right. If you are looking for that, then the industry is not the right place for you. You can go somewhere else. You can go in Bollywood and Tollywood and you can do your entertainment part. But if you are looking for a serious career, if you want to become a professional, then you can follow the same what I have mentioned here. You can go through the industry part, read articles, read newspapers, go to the site of the different companies, read their balance sheet or many things, their management part, the company's part, their establishment and all incorporation part and all. So those things will help you to get place in company. तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये चीजें ज्यादा फोकस करो, बट यस ये 20% चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दिस इज लाइक द बेसिक स्ट्रक्चर, राइट, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ योर द होल प्रोसेस और आपके करियर का. ये 20% पता होना ही होना चाहिए, तभी आप 80% यू विल एबल टू ग्रैब इट. क्योंकि ये आपको डायरेक्शन देता है कि मुझे किस में जाना है, उसी के हिसाब से यू विल प्रिपेयर, राइट. अगर बहुत सारे 90% जो स्टूडेंट है जो रूरल एरिया से है उनको यही पता नहीं होता है कि मुझे करना क्या है. या फिर बहुत सारे लोग जब मैं जब बोलता हूँ कि आई एम वर्किंग विद BNY या फिर बैंक ऑफ अमेरिका, तो बोलते कि भाई उसमें क्या प्रोडक्ट बनता है. सो दैट इज हाउ वी हैव अंडरस्टैंडिंग, राइट. बट ऐसे प्रोडक्ट वगैरह नहीं बनते, उनके सर्विसेज होते हैं. सर्विसेज के लिए आपको वहां पे रखा गया है कि आप बैंक ऑफ अमेरिका के बिहाफ से आप कस्टमर को सर्विसेज दे दो. तो वही चलता रहता है, तो ये सब होता रहता है, राइट. सो फाइनली वी आर एट एंड. होप you would like this journey, right. Try to watch this session till the end. I'm not asking you for subscribe and all, so that is your call. If you like it, you can subscribe. If you don't like, then don't subscribe it. And if you feel yes, this is good initiative I have taken, then you can forward this link or video to others or who those are in need, right. So this will help you a lot. So finally, I'll take your leave. Best of luck for your future and good night, goodbye.